It's warm full winter season, and once again welcome on my cricket chat. So it's a very serious issue. It's very shocking news has come today after Brisbane test, and the test has been draw. Veteran and champion off spinner R. Aswan has taken the retirement suddenly between the series in Border Gavaskar Trophy, and it's very shocking. So it has been cleared from the team management from Aswan side. He has taken a retirement from not only from Test cricket, from also international cricket. He will be available for a club cricket as well as possible as long, and in this next year of IPL he will be play on by Chennai Super King. It's a old favorite team, his home side, but if the records we can look in Test cricket, 570 uh, 37 wicket actually in 106 games, 65 one days, 116 ODIs as well, and 65 T20s. But if you look the overall record, uh, I think it has been a phenomenal 600s in Test cricket, and 150 in ODI cricket, 707 ODIs run as well. But if you look the fielding side, means he is not has been a very great athlete, but overall he has been a very you can say crucial and important bowler for a Indian side, especially in the spin duo. Ravin Jadeja and Aswan has taken so many wickets, not only in India, also over the world. And now the era, Aswan era, has been finished. It's very shocking. The 500 wicket in this year he has taken Jack Crawley in England series, and we were expecting more cricket from Sun side, and till the last and next cycle as well in England. But the problem is this: he was dropping once again, and that's why he hasn't waited for his time. And in this series, if you look, the first match Sundar has been played, and then in second in day night game Aswan has played and again dropped in Brisbane test. So the topsy-turvy selection, especially uh, outside of India, he gets hurt, so much hurt. And he said in the retirement speech, the cricket, so much cricket are left, but our probability, my you can say uh, uh, prime has been not gone, but our team management thinking is different. The first priority is now, in current scenario, Sundar as well as other spinners, not me. So Aswan has decided to his future, and before dropping from the selection side, he has taken a biggest decision of his career, and now he is now leaving his game. But he will be on in the club cricket, and as well as so many different leagues we can look. So बहुत ज़्यादा शॉकिंग डिसीजन था उनके तरफ से, एंड किसी ने भी सोचा नहीं था कि आर अश्विन, जिनके करियर में अभी भी 2-3 साल हैं, वो संन्यास इस टूर पे डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि रन्स जो हैं सीनियर प्लेयर से नहीं आ रहे हैं, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, या फिर सुमन गिल आया, यशस्वी जायसवाल, ये टॉप ऑर्डर भारत का
न्यूजीलैंड सीरीज़ से ही काफ़ी चर्चा में है। और न्यूजीलैंड सीरीज़ में तो काफ़ी ख़राब क्रिकेट भारत ने खेली थी, स्पेशली अपने घर पे होम क्रिकेट, और स्पिनर्स के सामने काफ़ी स्ट्रगल किया था भारत के बल्लेबाजों ने। इसके बाद फिर भारत जब ऑस्ट्रेलिया गया तो पहला मैच पर्थ में भारत ने जीता, और वो पेस अटैक वाला विकेट था। देन सेकंड डे नाइट टेस्ट में भी भारत हारा, क्योंकि भारत का उतना ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, प्रैक्टिस है नहीं, और उस गेंद से बहुत प्रॉब्लम होती है भारत को। तो भारत डेफिनेटली 2.5 दिन में वो टेस्ट हार गया। वहाँ पे अश्विन ज़रूर खेले थे, लेकिन कहीं से भी ऐसे कयास नहीं थे कि अश्विन इस तरीके से संन्यास लेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी गेंदबाजी चल रही थी सिंस बांग्लादेश सीरीज़। एंड अचानक से इस तरह से संन्यास लेना, कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में जो उनकी रिस्पेक्ट थी वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उनको प्रेफर नहीं किया जा रहा था एज ए फर्स्ट स्पिनर। और आपने देखा कि फर्स्ट टेस्ट में सुंदर को खिलाया गया। देन जब भी भारत से बाहर जाता था, अश्विन फर्स्ट चॉइस नहीं होते थे, या तो रविंद्र जडेजा खेलते थे या कोई और स्पिनर खेलता था, उन्हें हमेशा ड्रॉप किया जाता था। उन्हें टीम में तो रखा जाता था, बट प्लेइंग 11 में उन्हें जगह नहीं दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिनों से चल रहा था। 2018 मैं समझता हूँ इंग्लैंड टूर से ऐसा चल रहा था, तो काफ़ी हार्ड उन्हें ऐसा लगा कि अब हो गया। उन्होंने ऐसा सोचा कि अब उनका टाइम ख़त्म है। और हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट मैच जो पोस्ट लास्ट स्पीच आप कह सकते हैं एज ए इंडियन क्रिकेटर, जब उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी भी काफ़ी क्रिकेट बची है, बट चूँकि अब टीम मैनेजमेंट मुझे प्रेफर नहीं करता, तो मैं अपना डिसीज़न, अपने फ्यूचर का डिसीज़न ज़रूर लूँगा। और कपिल पाजी ने कहा कि बहुत अच्छा फेयरवेल के हकदार थे, बट he has taken a toughest and biggest decision of his career. और many congratulations for his second innings. And there are some stats and overall a very great scenario, and 537 test wicket, and in ODIs and in T20s there are also so many wickets. 268 left-handers out, 269 right-handers out, and 600 जो 6 शतक थे। 2011 वेस्ट इंडीज़ के सामने डेब्यू हुआ था, फर्स्ट विकेट था उनका ड्रेन ब्रावो का, और लास्ट विकेट अश्विनी ने लिया यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो मुरलीधरन के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए देखा जा रहा था उनको, क्योंकि बहुत करीब तो नहीं, लेकिन जो एक्टिव स्पिनर्स हैं, चाहे वो नाथन लियान हो चाहे अश्विन हो, तो उसमें से अश्विन काफ़ी प्रबल दावेदार थे। बट अब चूँकि उन्होंने संन्यास डिक्लेयर किया, तो भारत को काफ़ी दिक्कत आने वाली है, स्पेशली होम क्रिकेट में, क्योंकि रविंद्र जडेजा और अश्विन की जोड़ी भारत को काफ़ी सफलता दिलाती आई है, स्पेशली चौथे या पाँचवें दिन या शुरू से जब भी भारत को विकेटों की आवश्यकता होती थी। बट अब अश्विन चूँकि रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो हु विल बी द रविंद्र जडेजास पार्टनर, ये देखना होगा। वाशिंगटन सुंदर को प्रेफर किया गया है अश्विन की जगह, तो देखते हैं कितना अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते। क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज़ में अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी, बट वेरिएशन की बात की जाए तो अश्विन के पास बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थे। और थोड़ा सा अश्विन को मुझे लगता है वेट करना चाहिए था, क्योंकि अनिल कुंबले जो भारत के ग्रेटेस्ट स्पिनर रहे और हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 956 विकेटें हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, 300 से ऊपर वनडे क्रिकेट में विकेटें हैं, और 619 विकेटें टेस्ट विकेटें हैं। तो उनको भी कई बार ड्रॉप किया गया था और प्रेफर हरभजन को किया जाता था, बट उन्होंने इस तरीके की अनाउंसमेंट कभी नहीं की और प्रेसेंस रखा, और इसीलिए उन्होंने इतना लंबा करियर उनका रहा। और अश्विन के पास अभी टाइम था, ही स्टिल 2 or 3 years
as a cricketer he can play, but he has decided to tata bye bye of his international career, and 38 years old right now. बट कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि अब सेलेक्टर्स उन्हें शायद ही सेलेक्ट करें, तो उससे अच्छा है कि मैं अपने करियर को विराम देता हूं। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी है टीम मैनेजमेंट से, क्योंकि उनसे बात करनी चाहिए थी कि व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान ऑफ टीम मैनेजमेंट, कोच स्पेशली गौतम गंभीर, रोहित। बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और जब हम लोग टेलीकास्ट देख रहे थे और ये बारिश से खेल रुका हुआ था 5वें दिन ब्रिस्बेन टेस्ट में, स्टार स्पोर्ट्स विराट एंड अश्विन को ड्रेसिंग रूम से दिखाया जा रहा था, एंड उसी समय ऐसा लगने लगा था कि कुछ बड़ा डिसीजन आने वाला है, लेकिन संन्यास का डिसीजन आएगा, रिटायरमेंट का डिसीजन आएगा, ये शायद किसी ने सोचा था। तो बहुत कयास ये भी लगाया जा रहा है कि ये टूर ख़त्म होते होते और बहुत सारे रिटायरमेंट्स हो सकता है। जडेजा और रोहित भी इस फॉर्मेट को छोड़ दें, क्योंकि अगला जो टेस्ट सीरीज़ है भारत का, वह अगर भारत क्वालिफाई करता है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए तो जून में, अदरवाइज़ फिर जुलाई में ही भारत खेलेगा। एक टेस्ट जून में भी है, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। नेक्स्ट साइकिल में इंग्लैंड टूर से शुरू होगी। इसके बाद भारत में टेस्ट सीरीज़ अक्टूबर 2025 में खेलनी है, तो काफ़ी समय है। तो हो सकता और बहुत सारी रिटायरमेंट्स देखने को मिले। शायद विराट कोहली, जिनके रन्स नहीं आ रहे हैं, वो भी कोई बड़ा डिसीजन अपने करियर को लेकर कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे 36+ ईयर्स में है, तो अब बहुत ज़्यादा समय उनके करियर में नहीं। आखिरी पड़ाव जिसे कह सकते हैं, फाइनल टाइम, ये इन ऑस्ट्रेलिया का टूर ये सारे क्रिकेटर्स कर रहे हैं। अब ट्रांजिशन का टाइम है, आप कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट में एक बार फिर से। और ऐसा ट्रांजिशन का टाइम 2012 से लेकर 2013 तक आया था, जब भारत के 5-4 द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, सौरभ, द्रविड़, लक्ष्मण, इन चारों ने संन्यास लिया था। और सहवाग को आप नहीं भूल सकते, ज़हीर खान, हरभजन सिंह और बहुत सारे क्रिकेटर, युवराज सिंह। तो एक तरीके से खाली गैप हो गया था, तो इन क्रिकेटर्स ने इस गैप को भरा था। अब इन क्रिकेटर्स की बारी है। अभी भी मुझे लगता है रहाणे को इस टीम में होना चाहिए। पुजारा शायद ही इस टीम में जगह बना पाए, बट रहाणे ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है डोमेस्टिक, स्पेशली सैयद मुश्ताक ट्रॉफ़ी उन्होंने जिताया है मुंबई को। देन विजय हजारे ट्रॉफ़ी वनडे क्रिकेट जो है डोमेस्टिक भारत का, और रणजी ट्रॉफ़ी जो 1-2 राउंड के बाद फिर से ऑन होगा। तो अब देखते हैं भारत की जो नई टेस्ट टीम बनेगी, स्पेशली इंग्लैंड टूर से, क्योंकि ये दौरा तो अब लगभग ख़त्म ही है, क्योंकि 2 ही टेस्ट अब बचे हैं, एक बॉक्सिंग डे टेस्ट और एक न्यू ईयर्स टेस्ट। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर टू 30 दिसंबर 2024, बट ये लास्ट इंटरनेशनल मैच भी होगा भारत का। तो 1-1 से सीरीज़ बराबर है। वेरी क्लोज एंड एक्साइटिंग सीरीज़ आर गोइंग ऑन, बट देखना होगा कि भारत इस सीरीज़ के जो बाकी 2 टेस्ट मैचेस है उसमें क्या करता है। बट कहीं ना कहीं अश्विन के दिल में खटास रह गई, और इसी की वजह से उन्होंने संन्यास यहाँ पर डिसाइड किया। सेम जैसे धोनी के साथ 2014 में हुआ था, उन्होंने भी अचानक से संन्यास लिया था, और यहाँ अश्विन ने भी इसी तरीके का रिटायरमेंट लिया है। सो आप क्रिकेट चैट्स के साथ बने रहें। विंटर्स सीजन हैज़ बीन ऑन, इट्स अ overcast condition in my city right now, and some rains happen. It's heaviest not, but it's a little bit. The cold has been come, so protect your body from cold, enjoy the hot cup of tea, and follow my channel as well. Watch the new season of CID as well, the crime thriller and memorable favorite serial of my childhood. So thank you once again. Have a great day.